वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल इजी IT एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को टैबली एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए हैं, मगर आज मैं बिल्कुल ही अलग बताने जा रहा हूँ जो हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सनल लाइफ में भी इसे अपनाना चाहे तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसका रिलेशन खर्च से है। अब वो खर्च किसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस या घरेलू ज़िंदगी से हो, उसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देर किस बात की, ये रहा हमारा आज का वीडियो का टॉपिक। बजट एंड कंट्रोल इन टैली ERP9। टैली ERP9 में बजट बनाना पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध आपकी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को ट्रैक करने और नियंत्रित करने के लिए एक उपयोगी सुविधा है। टैली में बजट कैसे सेट अप करें और उसके साथ कैसे काम करें, इस पर ट्यूटोरियल नोट्स नीचे दिए गए हैं। खातों के वार्षिक अनुमान को बजट कहा जाता है। यह वार्षिक हो सकता है। Creating a budget in Tally ERP9 is a useful feature for tracking and controlling your company's financial performance against predefined targets. Below are tutorial notes on how to set up and work with budgets in Tally. The annual estimate of accounts is called budget. It can be annually. Step 1, क्रिएट कंपनी। सबसे पहले आपको वित्तीय अवधि के साथ बजट एंड कंट्रोल के नाम से एक नई कंपनी बनानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू क्रिएट ए न्यू कंपनी विद द नेम ऑफ बजट एंड कंट्रोल with the financial period of 1/4/2023 to 31/3/2024। स्टेप नंबर 2, इनेबल बजट्स। इससे पहले कि आप टैली में बजट के साथ काम करना शुरू करें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके टैली कॉन्फ़िगरेशन में बजट सुविधा सक्षम है। Before you can start working with budgets in Tally, you need to ensure that the budget feature is enabled in your company configuration. Here is how. Number 1, open Tally ERP9. Number 2, go to Gateway of Tally. Number 3, choose F11 features to open the features screen. Under F1 accounting features, find maintain budgets and controls and set it to yes. Step number 3, create a budget. Now that budgets are enabled, you can create a budget. Number 1, go to Gateway of Tally. Number 2, select accounts info. Number 3, choose budgets. Number 4, create a new budget by selecting create and providing a name for the budget. Example 2023 to 2024 budget. Step number 4, create the following ledgers. Next, create the ledgers of your budget. Number 1, Gateway of Tally, accounts info, ledgers, create. Name of ledger under opening balance. Number 1, capital account. Under capital account, opening balance 2,50,000 credit. Number 2, cash, it should be altered. Under cash in hand, opening balance 2,50,000 debit. Number 3, wages account. Under direct expenses, opening balance nil. Number 4, electricity bill. Under direct expenses, opening balance nil. Number 5, fuel. Under direct expenses, opening balance nil. Number 6, rental account. Under indirect expenses, opening balance nil. Number 7, salary account. Under indirect expenses, opening balance nil. Number 8, advertisement. Under indirect expenses, opening balance nil. Step number 5, create your budget. Next, specify the details of your budget as office expenses. Group budget, name, office expenses. Under primary, period of budget, set/alter budgets for. In period of budget from 1/4/2023 to 1/5/2024, groups
Yes. Direct expenses and indirect expenses. Instruction on closing balance in ledgers. Yes. All direct and indirect ledgers. Instructions on closing balance. Step number 6, define budget details. Next, specify the details of your budget. Number 1, choose the budget you created from the list. Number 2, specify the financial year for which the budget is applicable. Number 3, define the budget details by setting budget amounts for various ledger accounts as for direct or indirect expenses. Here you can set budgets for a specific costs or groups as well. Estimated value expenses, direct expenses 40,000, indirect expenses 60,000, wages 10,000, electricity 10,000, fuel 20,000, salary 20,000, rental 20,000, advertisement 20,000. Direct expenses total will be 40,000, indirect expenses total will be 60,000. Step number 7, now we shall do voucher entry. Path for voucher creation, gateway of Tally, accounting voucher, press F5, payment voucher. In accounting voucher creation, in payment, number 1, in account cash, in particulars select all ledgers. Wages account 10,500, electricity 9,500, fuel 20,500, rental account 21,000, salary account 20,000, advertisement account 9,500. Total would be 1,01,000. Step number 8, to view report of budget and control, follow these steps: gateway of Tally, display trial balance. Now current assets will display 1,01,000, direct expenses 40,500, indirect expenses 60,500, both debit and credit side 1,01,000. Step number 9, press Alt plus F2 to change period in the same trial balance screen. Change period from 1/4/2023 to 1/5/2024. Step number 10, press Alt plus B to view the report of budget and control. Select here office expenses. Press Alt plus F1 for more details. अब आपका ये बजट एंड कंट्रोल्स का काम पूरा हो गया। इससे आगे टैली एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट दिया जा रहा है, जिसे आप ध्यान से देखें ताकि बीच से कुछ निकल न जाए। इससे आगे अब हम लोग सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे आएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो टैली एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास ओपन है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंटरफेस हमारे सामने आ रहा है स्टार्टअप का। तो अब हम यहाँ पर चूँकि वर्क इन एजुकेशनल मोड तक पहुँचना है, तब उसके लिए हम ESC की प्रेस करेंगे, एस्केप करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट किया कीट येस और नो, तो हम करेंगे नो, हमें कीट नहीं करना है। पहले से ऑलरेडी एक कंपनी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर Alt plus F3 हम प्रेस करेंगे। यहाँ प्रेस करते ही पहले सेलेक्ट करेंगे शट कंपनी, एंटर करेंगे। तो जो कंपनी पहले से ओपनड है लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में, ये हमें डिस्प्ले कर रहा है। तो इसको सेलेक्ट किया, एंटर की प्रेस किए, ये कंपनी हमारा शट हो गया, यानी कि क्लोज हो गया। अब हम क्रिएट कंपनी के ऊपर में आएंगे। क्रिएट कंपनी आने के बाद एंटर करेंगे तो हमारे पास में कंपनी क्रिएशन फॉर्म सामने है। तो यहाँ पर हम एक नेम देते हैं, बजट एंड कंट्रोल इन टैली ERP 9 हमने दिया। एड्रेस में हम कुछ भी दे दिए, मेन रोड हो जाए। कंट्री ऑलरेडी हमारा इंडिया सेलेक्टेड है। स्टेट में हम यहाँ असम सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड जो यहाँ का है 782435 वो हमने दे दिया।
बाकी हमारा जो फिनंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 है, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2023 है। इंटर की प्रेस करते हुए हम कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ऑलरेडी हमारा ये न्यू कंपनी क्रिएट हो चुका। अब हमें यहाँ सेकंड स्टेप में आना होगा कि हमें बजट्स को इनेबल करना पड़ेगा। तब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर F11 फीचर्स बटन को प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग फीचर्स पे आएंगे और यहाँ से बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट राइट साइड में हमारा दिख रहा है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल्स, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ से फिर बैक करेंगे। बैक करने के बाद में अकाउंट्स इन्फो पे आएंगे और हमारा काम जो होगा नेक्स्ट वो काम होगा स्टेप नंबर 3 का बजट क्रिएट करना। तो हम यहाँ पे आएंगे, कैसे करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए अकाउंट्स इन्फो को इंटर करेंगे और यहाँ पे हमें ठीक लेजर्स के नीचे बजट्स मिलेगा, इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे और क्रिएट के ऊपर में चले आएंगे। अब यहाँ पे हमें जो बजट बनाने होंगे वो बजट हमारा होगा बजट हो गया। यहाँ पे नेम देंगे, नेम में ऑफिस एक्सपेंसेस अंडर प्राइमरी होगा ये। पीरियड ऑफ बजट फ्रॉम, तो जो हम जिस डेट में हमारी कंपनी क्रिएटेड है 1/4/2023 टू में हम यहाँ पे देंगे 1/5/2024। अब यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है सेट ऑब्लिगेटर बजट्स ऑफ ग्रुप्स और लेजर्स का, ग्रुप्स में के नीचे हमें नो दिख रहा है, यहाँ हम यस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अकाउंट का नेम हम एंटर करेंगे। अब जो भी हमारे अकाउंट होंगे उस अकाउंट्स का नेम हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो अकाउंट्स में हमारा आएगा, चूँकि एक गलती हो गई तो अभी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हमें लेजर्स बनाने होंगे। लेजर्स हमने बनाया नहीं था। अब यहाँ पे क्रिएट पे आए और यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। पहला हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट। अंडर कैपिटल इसका ओपनिंग बैलेंस हम 2,50,000 दे रहे हैं, एंटर किया। फिर अल्टर मोड में आकर कैश में इसे हम लोग डेबिट करेंगे 2,50,000, ये हो गया। अब हम बनाएंगे वेजेस अकाउंट अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। इसके बाद फ्यूल, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। रेंटल अकाउंट होगा, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। रेंटल के बाद सैलरी अकाउंट होगा, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा। इसके बाद में एडवर्टीजमेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में होगा। तो लेजर हमने बना लिया। अब हम लोग आएंगे बजट्स बनाने के लिए। बजट्स क्रिएट करने के लिए एंटर किया, क्रिएट करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, अंडर प्राइमरी होगा फ्रॉम 1/4/2023 टू 1/5/2024। यहाँ पे ग्रुप्स में हम यहाँ यस करेंगे। अकाउंट नेम सिलेक्ट करेंगे हम लोग। अब यहाँ से हम लोग लेंगे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ बजट में सेलेक्ट करना होगा ऑन क्लोजिंग बैलेंस। अमाउंट जो हमारा होगा
वो अमाउंट हम लोग फिक्स्ड करेंगे। यहाँ पे वो अमाउंट हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का 40,000 होगा हमारा। उसके बाद में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारा होगा वो भी ऑन क्लोजिंग बैलेंस 60,000। इसके बाद एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे लेजर्स की बात आ रही है तो यहाँ भी हम यस करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ से लेजर्स सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमें देखना है कि हमें कितने लेजर्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में है। तो वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर में है। वेजेस हमने सेलेक्ट किया, क्लोजिंग बैलेंस, इसका अमाउंट हमारा होगा, वेजेस का हो गया 10,000। हाँ, वेजेस का हो गया 10,000। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा हो गया ऑन क्लोजिंग बैलेंस 10,000। उसके बाद में आ गया फ्यूल का हमारा हो गया 20,000। सभी क्लोजिंग बैलेंस के साथ में होगा, एंटर करेंगे। इसके बाद में फिर एंटर कर लेजर्स अभी और ऐड करने होंगे हमें। ये तो मैंने अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सिर्फ दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का रह गया था जिसमें हमारा आएगा सैलरी का। ये भी ऑन क्लोजिंग बैलेंस 20,000 होगा सैलरी का भी। इसके बाद में रेंटल का हमारा आएगा, ये भी ऑन क्लोजिंग बैलेंस, रेंटल भी हमारा 20,000 है। इसके बाद में एडवर्टीज़मेंट का आएगा, ये भी ऑन क्लोजिंग बैलेंस 20,000 होगा। एंटर करेंगे। फिर एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ESC की प्रेस करके बैक हो जाएंगे। अब हमारा काम आता है पेमेंट करना। तो पेमेंट करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे, F5 पेमेंट वाउचर, यहाँ से कैश सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेजर्स लेंगे। पहले हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला ले लेते हैं। वेजेस में दिया गया 10,500। इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी में दिया गया आपको 9,500। इसके बाद में फ्यूल में दिया गया 20,500। इसके बाद में अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर इन्वॉल्व होगा। रेंटल में हमारा गया 21,000। इसके बाद में सैलरी में हमारा गया 20,000। इसके बाद में एडवर्टीज़मेंट में हमारा गया 19,500। टोटल हमारा यहाँ पे 1,01,000 हो रहा है। एंटर करेंगे, फिर एंटर किया, एक्सेप्ट हो गया। अब हमें इस रिपोर्ट को व्यू करना होगा। तो व्यू करने के लिए हम बैक होंगे और सीधा रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे और यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। फिर सेलेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस सेलेक्ट करके देखेंगे कि यहाँ पे करेंट असेट में हमारा टोटल हमारा ALTF1 डिटेल्स में देखेंगे। आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारा यहाँ पे 40,500 आ रहा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 60,500 आ रहा है। इसी स्क्रीन पर रहते हुए अब हमें ALT+F2 प्रेस करना होगा, यानी पीरियड को चेंज करने के लिए। तो चेंज पीरियड में हमने दिया 1/4/2023, फ्रॉम 2 में हमने दिया 1/5/2024। एंटर किया। एंटर करने के बाद ये हमारे सामने स्क्रीन दिख रहा है। अब हमें क्या करना होगा, यहीं पर ALT+B हम लोग प्रेस करेंगे। इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस और यहाँ पे ये हमारा रिपोर्ट डिस्प्ले करेगा। तो अब ये हमारा असाइनमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.